Welcome dear student. Today you will learn the application of stack. This is the third topic of unit 3, that is stack and queue. In previous video you had learned about the concept of operation on stack, that is push operation, pop operation, peep operation, algorithms of various operations you had studied. Now in this video you will see the various application of stack in the real life use and in the use of programs. So after watching this video you will able to understand the applications of stack. Here two applications of stack in this video we are going to explain, that is reversing a string and polish notation. The POs map, program outcome maps from this video are PO 1, 2, 3, 4, 8, 9 and 10. So first we will see what are the applications of stack. मतलब stack कहाँ पे यूज होता है, इसके क्या यूजेस है. तो सबसे पहला यूज है रिवर्सिंग अ लिस्ट. स्टैक जैसे आपको पता है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो अगर मुझे कोई टेक्स्ट या फिर कोई स्ट्रिंग या फिर कोई नंबर सीरीज अगर रिवर्स करनी है तो स्टैक का यूज होता है. सेकंड है पॉलिश नोटेशन. पॉलिश नोटेशन, तीन पॉलिश नोटेशंस यूज होते हैं टू रिप्रेजेंट एनी एक्सप्रेशन, दैट इज इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्टफिक्स नोटेशन, that is represented by polish notation. After that, conversion of infix to postfix, evaluation of postfix expression, conversion of infix to postfix, evaluation of prefix expression and recursion. These are the various applications of stack. In this video we are concentrating on the two application, that is reversing a list and polish notation. The remaining these applications of the stack we will see in another video. So first application of stack, that is reversing a list or string. Now what is the reversal of string? The reversal of string using a stack. So we can reverse a string by pushing each character of this string on the stack, and after the whole string is pushed on the stack we can start popping the character from the string and get the reverse string. Now you can see here the example is spot is the string. We will push each character. हम ये spot जो हमारी string है उसमें से एक एक character stack में push कर जाएंगे. जैसे first we will push S, then P is push on the stack, then O is push on the stack and then T is push on the stack. Now when we will reach to the end of the string हम एक एक character को pop कर जाएंगे. First we will pop the T, then O is get popped, then P is get popped and then S is get popped. Now the stack is empty and whatever the result we got, that is tops, that is a reverse of spot. So stack can be used to reverse of a string or the reverse of a list. Now from this example again we will going to explain in detail what is the reversing a list. You can see here hello is the string, we pushes H, we pushes E in a stack, then L in a stack, then again this L in the stack and then O is in the stack. Now we are going to pop each and every element from the stack one by one, so we get the reverse of a string. Same way this is the for reverse of for the string. Now we can see a reversing a list. अगर मुझे कोई नंबर सीरीज को रिवर्स करना है, किसी नंबर्स के कलेक्शन को रिवर्स करना है, then first we push the 1, then 2 is get pushed, then 3, 4, 5 and 6, and when we pop each and every element one by one, so 6 get pop first, 5, 4, 3, 2, 1. So we get the reverse of the list. Now what is polish notation? Polish notation, जब भी आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हो, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपने यूज किया है, उसमें दो चीजें होती है, एक होता है ऑपरेटर और ऑपरेंड. तो ऑपरेटर मतलब सिंबल होते हैं, जैसे प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, दिस आर नथिंग बट द ऑपरेटर्स. और ये जो दो ऑपरेटर के बीच में जिसके ऊपर ऑपरेट होता है ऑपरेटर, उसको बोलते हैं ऑपरेंड. जैसे ये A and B आर द ऑपरेंड. तो ऑपरेटर आर दोज व्हिच ऑपरेट्स ऑन ऑपरेंड.
तो जब भी आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हो, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द ऑपरेटर्स ऑफ एक्सप्रेशन आइदर बिफोर देयर ऑपरेंड्स और आफ्टर देम इज कॉल्ड अ पोलिश नोटेशन। जब भी आप कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखते हो जिसमें आप ऑपरेटर को कहां पे लिखते हो, ऑपरेंड के पहले लिखते हो या ऑपरेंड के बाद में लिखते हो या ऑपरेंड के बीच में लिखते हो, उसे कहा जाता है पोलिश नोटेशन। The main property of the Polish notation is that the order in which operations are to be performed is ascertained by the position of the operator and operands in the expression। अभी जहां पे आप ऑपरेटर की पोजीशन स्पेसिफाई करोगे उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि उस ऑपरेटर के ऊपर, उस ऑपरेंड के ऊपर वो ऑपरेटर का क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। या फिर अगर उस एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर इन्वॉल्व है तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द पॉलिश नोटेशन। So one Polish notation we all are familiar, that is infix notation। अभी तक क्या आपने जितने भी स्कूल लेवल में या फिर फर्स्ट ईयर तक जितने भी आपने नोटेशंस देखे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज अ इनफिक्स नोटेशन। तो इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है, इनफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर आपका ऑपरेंड के बीच में रिसाइड करता है। जैसे प्लस, हियर इज द प्लस इज द ऑपरेटर, इट प्लेस्ड बिटवीन द टू ऑपरेंड दैट इज ए एंड बी। तो दिस इज नथिंग बट द इनफिक्स नोटेशन। अभी कंप्यूटर इंडस्ट्री में इनफिक्स नोटेशन तो यूज होता ही है, बट इसके अलावा अदर नोटेशंस भी यूज होते हैं जैसे पोस्टफिक्स नोटेशन एंड प्रीफिक्स नोटेशन। तो द नोटेशन रेफर्स टू दिस कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन थ्री फॉर्म्स। अभी नोटेशन, अरिथमेटिक नोटेशन या फिर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। If the operator symbols are placed between its operand, अगर ऑपरेटर बीच में प्लेस्ड है किसके, ऑपरेंड्स के, then the expression is in infix notation। तो हम बोलेंगे एक्सप्रेशन कौन से इसमें है, infix notation में है। तो here you can take the example a plus b, तो this expression a plus b is in infix notation। If the operator symbol are placed before its operand, then the expression is in prefix notation। जैसे यहाँ पे देखो ये जो प्लस ऑपरेटर है ये ऑपरेंड के पहले है, मतलब प्रीफिक्स है, प्री मतलब पहले। तो अगर ऑपरेटर अगर ऑपरेंड के पहले दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। इफ द ऑपरेटर सिंबल आर प्लेस्ड आफ्टर इट्स ऑपरेंड, अगर ऑपरेटर सिंबल ऑपरेंड के बाद में दिया हुआ है, देन द एक्सप्रेशन इज इन पोस्टफिक्स नोटेशन। सो यू कैन सी हियर ए बी और उसके बाद दिया है प्लस, तो दिस इज इनफिक्स नोटेशन, दिस इज प्रीफिक्स नोटेशन, दिस इज पोस्टफिक्स नोटेशन। दीज आर द थ्री नोटेशन टू रिप्रेजेंट द अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। एंड जनरली अभी तक के हमने यूज किया है इनफिक्स नोटेशन, क्योंकि हम जितना भी हमने प्रोग्रामिंग किया है या फिर जितना भी हमने अभी तक एक्सप्रेशन सॉल्व किए, दैट आर बाय द इनफिक्स नोटेशन। So here are the some examples of the infix notation, prefix notation and postfix notation. Here a plus b, here also same expression, इसका भी मीनिंग वही है, इसका भी मीनिंग वही है और इसका भी मीनिंग वही है। बस इसमें ऑपरेटर को जो प्लेस किया है उसके पोजीशन के हिसाब से या अगर इनफिक्स बना है, प्रीफिक्स बना है या पोस्टफिक्स बना है। जैसे ये एक्सप्रेशन है, सिर्फ इतना आप ध्यान में रखना है कि इनफिक्स नोटेशन में ब्रैकेट्स होंगे, बट पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स नोटेशन में कोई भी ब्रैकेट नहीं होता है, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं होता है। इट इंक्लूड्स ओनली ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। तो जैसे इनफिक्स नोटेशन में आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, आइदर इट मे बी स्क्वायर ब्रैकेट, मे बी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, बट नॉट इन प्रीफिक्स नोटेशन, नॉट इन पोस्टफिक्स नोटेशन। ना अभी हमारे दिमाग में सवाल आता है कि अगर इनफिक्स नोटेशन है और दोनों का रिजल्ट अगर सेम आता है तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। क्या जरूरत है इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करने की या फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूज करने की, या फिर सिंपल सवाल है कि अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन का भी को हम अभी तक यूज कर रहे हैं तो उसी को क्यों नहीं यूज करते हैं, हम क्यों प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बिग क्वेश्चन। जैसे सिंपल एक एक्सप्रेशन लो a प्लस बी, इट इज ए इनफिक्स एक्सप्रेशन, a प्लस बी
into c minus of d, दिस इज वन एक्सप्रेशन। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कर सकता हूँ बाय द इनफिक्स एक्सप्रेशन। देन व्हाई वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो अगर हम इनफिक्स एक्सप्रेशन की बात करें, वो इजी है टू राइट, अगर हमको लिखना है तो इजी है, वी कैन राइट a प्लस बी इन ब्रैकेट c इंटू डी, वी कैन राइट। बट कंप्यूटर फाइंड इज डिफिकल्ट टू पार्स द एक्सप्रेशन, बट जो कंप्यूटर प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करने जाता है तो उसे डिफिकल्टी आती है, एज द कंप्यूटर नीड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट इट। अभी जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया 2 + 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस ऑफ 5 इंटू 4। ये अगर मैंने आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए दिया तो मैंने अगर 10 लोगों को दिया तो 10 लोग मुझे अलग अलग रिजल्ट देंगे। इट विल, किसी का कुछ रिजल्ट आएगा, कोई एडिशन पहले करेगा तो कोई सब्ट्रैक्शन पहले करेगा तो कोई मल्टीप्लीकेशन पहले करेगा। अगर हमको सॉल्व करना है तो आप बॉडमस रूल लगाते हो जो आपने स्कूल में पढ़ा है, दैट इज ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी वैसे ही अगर मुझे इनफिक्स एक्सप्रेशन जिसमें ब्रैकेट्स होते हैं, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन अगर कंप्यूटर पे इवेल्युएट करना है तो मुझे ऑपरेटर का प्रेसिडेंट, जैसे ये ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर डिवीजन माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेटर में की हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है। जैसे बॉडमॉस रूल में ब्रैकेट ओपन डिवीजन को पहली प्रायोरिटी है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, तो वो हमको ऑपरेटर की प्रायोरिटी देखनी पड़ती है अगर मैं इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो। एसोसिएटिविटी रूल्स देखने पड़ते हैं। एसोसिएटिव मतलब वो एक्सप्रेशन, वो ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट सॉल्व हो रहा है या राइट टू लेफ्ट सॉल्व हो रहा है, और फिर ब्रैकेट को भी कंसिडर करना होता है। तो इन तीन चीजों को जब आप कंसिडर करते हो तो रिजल्ट में वेरी हो सकते हैं। तो उस केस में हमको उस इनफिक्स एक्सप्रेशन को आइदर प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होता है। अभी ये करने से क्या होगा, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो हमको एक तो कोई ऑपरेटर के प्रेसिडेंस का रूल फॉलो करना नहीं है, कोई एसोसिएटिविटी रूल को कंसिडर करना नहीं है, और ब्रैकेट्स तो होते ही नहीं है। तो इनफिक्स और प्रीफिक्स में कोई भी ब्रैकेट, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कोई भी ब्रैकेट नहीं होते हैं। जिस सीक्वेंस में आपके ऑपरेटर आएंगे, जिस सीक्वेंस में आपके ऑपरेंड आएंगे, उस सीक्वेंस में हमारा एग्जीक्यूशन चलते रहेगा। सपोज द एक्सप्रेशन इज लाइक 2 + 3 10 डिवाइडेड बाय -10 - 5 into 4. Some of you may evaluate the different result, but if the expression are postfix or prefix form, then no need to follow the rules or no bracket. So computers work efficiently with prefix and postfix notation, so we need to convert infix to prefix and infix to postfix form. और ये कन्वर्ट करने के बाद इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करने के लिए और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने के लिए आपको स्टैक की जरूरत होती है। तो दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक टू कन्वर्ट द इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। So what you learn from this video, you learn the applications of stack जैसे रिवर्सिंग द लिस्ट एंड बेसिक पॉलिश नोटेशन। फिर आपने देखा इनफिक्स क्या है, पोस्टफिक्स क्या है, प्रीफिक्स नोटेशंस क्या है। The POs map from these topics are basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, engineering tools, individual and teamwork, communication and lifelong learning. If you are having any doubt or any queries related to this topic or video, you are feel free to call or email me. I am always there to help whatever the queries or doubts you have and to solve it. Thank you.